Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جب میں عرض مدینہ پہ چلا دل ہی دل میں بہت عطر آیا ہوں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا نور اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، مفتی سید مبشر رضا قادری آپ سے مخاطب ہوں، منتظم اللہ ختم نبوت فورم۔ آج کچھ اصلاحی باتیں ہم کریں گے، اور میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو دوست سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپس میں جب وہ مکالمات کرتے ہیں، کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، یا کسی کا حال احوال دریافت کرتے ہیں، تو ان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں ہائے، ہیلو۔ سب سے پہلا کومنٹ جو آتا ہے، یا پہلا جو بالکل جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے، ہائے، ہیلو، یہ والا لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، اور کئی لوگ سلام لیتے ہیں، اور سلام کا بھی مختلف انداز ہوتے ہیں جو کہ اکثر غلط لکھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور دوستوں کو سمجھانا ہے، کیونکہ اسلام مسلمان کی پہچان ہے۔ سلام کرنا مسلمان کے لیے ایک دعا ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ سلام کے اندر بڑی مٹھاس ہے، اور سلام جب درست طریقے سے نہیں لی جائے گی تو یہ جو پہچان ہے وہ آپ کھو چکے ہیں۔ جب سلام کا درست طریقہ ہی آپ کو نہیں آتا تو آپ مسلمانی کی جو علامت ہے، اسلام کی جو پہچان ہے، اس کو آپ کھو چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ یہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ کر کے سمجھاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے آئندہ سے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ سلام لیتے ہیں، سب سے پہلے لکھتے ہیں جناب سلام، لکھتے ہیں سلام علیکم، لکھتے ہیں سلام و علیکم، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ یہ دو تین میں نے سلام یہاں لکھے ہیں، ان کو آپ ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ اور باہر بھی کوئی ریڈی والے آئے ہیں، شور بھی ہے، بہرحال آپ گزارا کر لیں۔ اور یہ سکرین بھی آپ کو الٹی دکھائی دے رہی ہوگی کیونکہ میں فرنٹ کیمرہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ سارے سلام غلط لکھے ہیں، یہ جتنے سلام لکھے ہیں یہ سارے غلط ہیں۔ یہ سلام لکھا آپ نے غلط ہے، یہ سلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ درست سلام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ لکھتے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم، یہ بھی غلط ہے۔ یہ لکھا آپ نے سلام و، یہ واو لکھا بیچ میں، علیکم، یہ بھی غلط۔ یہ السلام، یہ الف سین لام الف اور میم علیکم، السلام علیکم، یہ سب غلط ہے۔ یہ جتنے لکھے ہیں یہ سب غلط ہے، اور جو درست ہے وہ میں آپ کو نیچے یہاں لکھ کے بتاتا ہوں۔ درست ہے السلام علیکم، آگے آپ رحمت اللہ وبرکاتہ ڈال لیں تو بہتر ہے، نہیں تو درست سلام یہ ہے السلام علیکم۔ الف لام لگانی ہے، یہاں پہ الف لام لگانی ہے۔ السلام، یہ میم کے اوپر اصل میں پیش ہے، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے واو ہے،
वाओ नहीं है, ये कई इस तरीके से लिखते हैं वाओ, सलामुन वा अलैकुम, नहीं ये गलत है, ये है दुरुस्त, अस्सलामु अलैकुम, इस तरीके से लिखा करें। कई दफा रोका, कई दफा समझाया, लेकिन हमारे दोस्त ये गलत जब आप इस्तेमाल करेंगे, इससे ये पता चलता है कि आपको इस्लामियात का इल्म नहीं है, दीनियात का आपको इल्म नहीं है, आप इस्लामियात और दीनियात से ना बलद हैं, ना वाकिफ हैं। आपको तो सलाम दुआ का तरीका तक नहीं जब आता, तो आपकी इल्मियत तो उसी वक्त ही खुल के सामने आ गई। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जब आप दूसरे लोगों के साथ मुकालमात करते हैं, मुनाजरात करते हैं, तो ये चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर देखा जाता है कि बंदे की इल्मियत को जांचने पड़ताल करने के लिए वो ये चीजें मुआविन होती हैं। सलाम दुआ कम अज कम दुरुस्त तरीके से लें, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बड़ी बड़ी चीजें, इनको छोटा नहीं समझना। कई दोस्त कहते हैं छोटी चीज है, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपने सलाम लिखा, ये गलत है, असल तरीका है अस्सलामु अलैकुम। ये सलामुन आपने लिखा, यहां अलिफ लाम आप नहीं लिखते, अलिफ लाम है, इसको मुअर्रफ बिल लाम करना है, यानी अलिफ लाम लगाना है, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। इधर ये इस तरीके से अस्सलामु अलैकुम। यहां पर आपने सलामुन वाल डाला, ये वाओ नहीं है, असल में पेश है, मीम के ऊपर पेश है, तो इस तरीके से अस्सलामु अलैकुम, मीम के ऊपर पेश, ये वाओ नहीं डालनी, ठीक है। और यहां अलिफ लाम डालना, ये लिखते हैं आप अस, अलिफ अलिफ सीन अस, ये अस नहीं है, असल में है अल, अल, इसके शुरू में अल डालना है, ये अल, ये देखे ना, जैसे अल किताब, जालिकल किताब, ये अलिफ लाम है। क्योंकि आप अरबी से ना वाकिफ है, तो इस वजह से आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। जो अरबी से जानते हैं, अरबी से वाकिफ है, तो उनको पता होगा कि ये मुअर्रफ बिल लाम है, किसी इसम को खास करने के लिए, मारिफा बनाने के लिए उसके शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं। इसको लामे तारीफ कहते हैं, ये लामे तारीफ है, अलिफ लाम। अल सलाम, ये असल में है अल सलाम, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अल सलाम, जिसको आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ये लाम साइलेंट हो जाता है, ये लाम साइलेंट, अस्सलामु अलैकुम। आगे रही बात ये कि जो मसनून सलाम है वो तो ये ही है मुकम्मल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते तो कम अज कम ये वाला भी अगर शार्ट सलाम लिखते हैं तो ये लिखा करें, अस्सलामु अलैकुम। ये मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूं कि हमारे दोस्त बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये एक लफ्ज बोलते हैं आप लोग हाय, HI, हाय, हाय बोलते या ही लिखते हैं, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आई। हेलो, ठीक है, ये हाय हेलो, ये हाय हेलो, ये भाई ये कोई सलाम नहीं है। बहुत दुख होता है, बड़ा गुस्सा भी आ जाता है मुझे कभी कभी कि बड़े बड़े समझदार किस्म के लोग जब मुझे आके कहते हैं हाय, व्हाट्सएप के ऊपर भी या इस तरीके से, तो पहले तो ये एक है कि भाई एक साहिबे इल्म के साथ कम से कम आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं और उसके साथ आपका वो सलाम का तरीका क्या है, हाय, ऐसों को मैं ब्लॉक कर देता हूं, आते ही ब्लॉक कर देता हूं, अगली बात ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये बात आप आपस में भी, आपस में चाहे दीनदार हैं या दुनियादार हैं, कोई भी है तो मुसलमान ना, कम अज कम तो पूरा सलाम लिखा करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरा लिख लें। नहीं तो ये सलाम का जो तरीका बताया इस तरीके से आप लिखा करें। हम ये देखें मुकालमा तो करते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ तरबीती चीजें भी होनी चाहिए। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये तरबियती है, तो मैं कोशिश किया करूंगा आपको तरबीती भी कोई चीजें इस तरीके से आपके गोश गुजार। ये देखिए अभी गलत लिखा ना आपने, ये गलत लिखा है, ये चौधरी साहब ने, जो साहब ये गलत है, अस्सलामु अलैकुम नहीं, ये जरा दोबारा आप सलाम लिखें, ये देखिए ये वाली सलाम, अलिफ लाम डाल लें, दोबारा कंपोज करें जरा,
अलिफ लाम डालें, अल सलाम ये लिखें, ये अस्सलाम आपने ये लिखा है, ये अस्सलामु अलैकुम आपने ये लिखा है, ये गलत है, ये सही है। ये उमर सज्जाद साजिद क्या ले सज्जाद ये सही लिखा है, अस्सलामु अलैकुम। ये देखिए ना आप, ये छोटी छोटी गलती नहीं है, आप समझे छोटी सी बात, छोटी नहीं है। अरबी के एतबार से ये सलाम अरबी का है, अरबी के एतबार से आप गलत लिखते हैं, समझ आई कि नहीं। सलाम ही जब अरबी का है, आप इसको आप अपनी पंजाबी में ना डाल दें, या इसको आप अपनी सिंधी में या वो पश्तून में या किसी और जुबान में ना लिखें, आप इसको अरबी है तो अरबी ही रहने दें जी। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद शाहिद कादरी अत्तारी, ठीक है, बेहतरीन, ये अस्सलामु अलैकुम, जबरदस्त। अच्छा ये तो हो गया हाय हेलो, ये भी नहीं लिखना, ठीक है। कई लिखते हैं रोमन के अंदर, जी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, रोमन के अंदर लिखते हैं सलाम, सलाम सलाम, इस तरीके से वो रोमन में लिखते हैं। तो सलाम ये इस तरीके से जो सलाम रोमन के अंदर करता है, तो उसको फिर मैं WS से जवाब देता हूं, ये वस्सलाम, ये भी शार्ट। तो बहरहाल ये शार्ट वगैरह इस्तेमाल ना किया करें। जब आप पूरा इस्लाम नहीं करेंगे तो हम पूरा जवाब क्यों दें आपको। जब आपने हमें पूरी दुआ नहीं दी तो हम आपको पूरी आपकी अधूरी दुआ का जवाब अधूरा ही देंगे ना। फिर बात समझ गए हैं कि नहीं। वस्सलाम, चलो जी, सलाम वस्सलाम, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। मैं ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें। सलाम नहीं करना आपने, अस्सलामु अलैकुम लिखें, वो भी आप इस तरीके से लिखें, ये अस्सलामु अलैकुम। ये सिर्फ सलाम और वस्सलाम इनसे गुजारे ना किया करें, ये गलत लिखा है भाई। ये मुफ्ती साहब ये क्या लिखा है, मोहम्मद अब्बास मिर्जा, ये देखिए यही तो मैं समझा रहा हूं, ये गलत लिखा है। अस्सलामु आगे वाव डाली है आपने, आपने ये लिखा है, आपने ये लिखा है, ये वाव डाली है बीच में, ये गलत है। ये इस तरीके से लिखें, वाव के बगैर लिखें। अब्बास भाई दोबारा सलाम लिखें जरा, मैं यही तो समझा रहा हूं, आज यही मेरा टॉपिक है, सलाम का तरीका बताया जाए। अस्सलामु अलैकुम ये लिखें। जी जी मैं इंतजार कर रहा हूं अब्बास भाई, ये लिखें, इस तरीके से लिखें, अस्सलामु अलैकुम। वाव नहीं डालनी, वाव नहीं डालनी, लिखें जरा, दोबारा लिखें, दोबारा लिखें जरा। तरबियत भी कम अज कम होनी चाहिए। हमें ज्वाइन तो बहुत लोग करते हैं, लाखों में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फॉलोवर्स लाखों में, लेकिन उनकी तरबियत भी जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह आगे और भी मजीद कोशिश करता हूं, नमाज का तरीका एक बताया जाए, नमाज का एक जो तरीका है, तो इस तरीके से नमाज जनाजा है, छोटी छोटी चीजें जो है, वुजू है, गुस्ल है, तहारत के मसाइल, मैं छोटे छोटे इंशाल्लाह वो कभी कभी मैं अर्ज किया करूंगा, क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है। अस्सलाम ये गलत लिखा भाई, फिर अब्बास भाई गलत लिखा। अलिफ लाम डालें, अलिफ के बाद अली लाम डालें, सीन से पहले लाम डालना है, ये सीन से पहले लाम डालें। ये आपने ये लिखा है, आपने ये लिखा है, गलत लिखा है, ये है अलिफ लाम डालें, अस्सलामु अलैकुम दोबारा डालें जरा, ताकि पता चले कि ये है दुरुस्त। ये अभी फखर काजी फखर ने ये रोमन के अंदर सलाम लिखा है, अस्सलामु अलैकुम। रोमन में तो फिर चल जाएगा, ये अब्बास मिर्जा बेहतरीन, अस्सलामु अलैकुम ये है, ये देखिए मैंने आपको टोका, अब आपने अगलों को टोकना है, रोकना है और समझाना है। चाहे तो मेरी ये वाली वीडियो जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करूंगा, इसी को दूसरे दोस्तों के सामने आप शेयर कर दे, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें, ताकि लोगों को सलाम का तरीका तो आए ना भाई। सलाम करने नहीं आता तो ऊपर से बने हैं जी हम मुसलमान हैं, तो भाई मुसलमान है आप, एक पूरी एक चलती फिरती तबलीग है, आप मुकालमात करते हैं लोगों के साथ, डिबेट्स करते हैं, तो कम से कम ये इब्तदाई चीजें तो कम से कम पता होनी चाहिए ना। ठीक है जी, कारी साहब भी तशरीफ लाए हैं,
تو میں یہ سلام کے بارے میں آج کچھ تربیتی پہلو عرض کر رہا ہوں. آپ حضرات تو ابھی تشریف لائے. تو یہ غلط سلام میں نے بتایا، یہ سب غلط ہے طریقے، اور درست یہ ہے. الف لگے گا، آگے لام لگے گا، آگے سین. السلام، آگے واؤ نہیں ڈالنی. السلام علیکم، یہ غلط لکھا ہے جی. غلام حسین، غلام حسین نے غلط لکھا ہے. غلام حسین آپ نے یہ لکھا ہے، یہ والا اسلام، یہ غلط ہے. میں ابھی بتا کے آیا ہوں کہ الف لام ڈال لیں، الف لام ڈال لیں یہاں پہ. السلام علیکم، ٹھیک ہے، یہ ہے درست. جی بڑی مہربانی قاری صاحب، بہت مہربانی، آپ کی کوشش کو سلام. جی کوشش تو دیکھیں نا، عالم کا کام ہی یہ ہے کہ جتنا علم ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے، اگرچہ ایک ہی چیز تمہیں کیوں نہیں پتا پہنچا دو. ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں جتنا پتا ہے کم از کم اگلوں کو بتا دیں. تو ہاں، اردو کی بورڈ، اعجاز چودھری فرما رہے ہیں کہ اردو کی بورڈ، بالکل اردو کی بورڈ ہونا چاہیے، کر لیا کریں آپ. جی السلام علیکم، بہترین، ماشاءاللہ. سید اختر القادری غالباً انڈیا سے ہمارے دوست ہیں، تو بہت بہترین، یہ ہے السلام علیکم، بہترین، زبردست. یہ ہے، دوستوں کو بتایا کریں، سمجھایا کریں. اصل میں پتہ ہے کیا، ہم جس جگہ کوئی نقص دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے نہیں اگلے کو، وہ نقائص. قاری صاحب آپ نے بھی غور کیا ہوگا، ہم نقائص نہیں بتاتے. بالفرض ہم نے کوئی چیز خریدی ہے یا کسی جگہ چائے پی ہے، روٹی کھائی ہے، تو وہاں جو گندگی ہوتی ہے یا وہ صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہوتا یا جو نقائص ہوتے ہیں وہ ہم جا کے بتاتے نہیں ہیں. کم از کم جا کے بتائیں. وہ الگ بات ہے، وہ اس کے اندر تبدیلی کرے یا نہ کرے، وہ اس کی اپنی خوشی، لیکن کم از کم کمپلین ضرور کریں. تو کمپلین سے یہ ہوتا ہے کہ نکھار پیدا ہوتے ہیں. ہمیں ذاتی طور پہ، مجھے اتنے دوست میری تربیت کرتے ہیں، کئی باتوں کے اندر ہمیں آ کے بتاتے ہیں، تو ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نکھار رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمارے اندر غلطیوں کو درست کر رہے ہیں. دن بدن ہمیں جو ہے نا وہ بہتر سے بہترین بنانے کے چکر میں ہیں وہ. تو یہ بہت ان کا شکریہ ہم کریں گے، تھینک یو کریں گے ہم. تو اس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کمپلین کیا گیا، یہ کمپلین ہے کہ بھائی یہ دیکھیں آپ سلام غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سلام غلط کرتے، سلام کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی. تو وہ اگلے کو بتا دیا جائے، وہ اگلا سمجھے نہ سمجھے، اس پہ عمل کرے نہ کرے، وہ اس کی پھر اپنی خوشی ہے. تو آج یہی میں نے چند باتیں سلام کے متعلق عرض کرنی تھی. زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آپ اس کو شیئر کر دیجئے گا، اور کم از کم اس دوست کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریے گا جو غلط سلام لیتا ہے. میں نے لکھ کر کے ہر چیز سمجھائی، تاکہ یہ سکرین الٹی دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو تو گزارا کر لیجئے گا، کیونکہ یہ فرنٹ کیمرہ ہے نا، تو فرنٹ کیمرے میں وہ الفاظ الٹے دکھائی دیتے ہیں. وہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں چائے پی رہا ہوتا ہوں، ہاں جی، یہ دیکھیں نا، یہ میں نے سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہے، چائے پیتا ہوں، تو کئی دوست کہتے ہیں اوہ شاہ جی تسی الٹے ہاتھ نال چائے پیندے ہو پہ. تو الٹا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ہے سیدھا ہاتھ. تو ایسے چائے پیوں گا تو وہ آپ کو لگے گا کہ یہ الٹا ہے، الٹا نہیں ہے. تو حسن ظن بھی رکھ لیا کرے. گزارا یہ ہے کہ یہ فرنٹ کیم ہے، اس میں الفاظ الٹے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیمرہ الٹا ہے نا. تو یہ چیزوں کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے. اور یہاں میں ایک اور پیغام دے دوں، پھر بات ختم کرتے ہیں، کہ علمی بندے کچھ سامنے آئے بھیا، مکالمات والے صاحبان تحقیق، کچھ بندے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے چاہیے. کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ تھوڑی سی محنت کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر علمی گفتگو جو ہے نا اس کو ہوا دیں. اور یہ جو مسلک کھیلتے ہیں ہمارے بھائی، کیونکہ مسلک کھیلنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ دور بہت آگے جا چکا ہے، فتنوں کا دور ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، بھی اس کو بھی رہنے دیں. یہ مسلک والا کھیل جو ہے، ابھی تو کھیل بہت بڑے عروج پہ ہیں فتنے، ان کو لیں آپ.
और उनका मुआकबा करें, उनका मुहासबा करें, उनकी पकड़ करें, जिस जानब से वो आए उनको पकड़ें। इल्मी तौर पे आप कम से कम इल्मी तौर पे पकड़ें, उनको लाजवाब करें। जरूरत है इस चीज की, बहुत जरूरत है। अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत कीजिए, अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत कीजिए। और अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जो भी आंच आ रही है, जहां से भी आ रही है, जहां से चिंगारी जो है ना उठ रही है, उसको वहीं पे दबाएं इल्मी तौर पर और कदम बढ़ाइए। उलमा हजरात, साहिबान इल्म, साहिबान तहकीक, कदम बढ़ाइए, खत्म नबूवत की मुहाफजत कीजिए। बहुत पुरफितन दौर आ गया है और यहाँ पे अकीदा खत्म नबूवत को बहुत ज्यादा खतरात का सामना है, बहुत खतरे हैं, मंडला रहे हैं सरों पर। और मैं आपको बताऊं, ये जो सूफी आजकल बने हुए हैं ना, बड़े बड़े सूफी फकीर, ये बड़े बड़े पर तोल रहे हैं। आप जरा तहकीक करके देखें, जरा अंदर घुस के देखें और इनकी किताबें उठा के देखें, इनकी स्पीचेस, इनकी जो तकरीरें हैं वो उठाकर देखें। आप मुताला करें, आप तहकीक करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये लोग या तो मुजद्दिद बनने के चक्कर में हैं, मुजद्दिद से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इमाम महदी, इमाम महदी से आगे थोड़ा सा बने तो हजरत ईसा इब्ने मरियम मसीह, या मसीले मसीह, बरोदी तौर पे तो जिली तौर पे वो मिर्जा गुलाम कादियानी वाले ड्रामे, ये हमारे सूफियों फकीरों ने भी ये रचाने शुरू किए हुए हैं। इन पे नजर रखें। यही नहीं कि आप घर के बाहर देखते रहें, घर के बाहर की चौकीदारी करते रहें, देख रहे हैं आप दूरबीन लगा के कहां कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, तो आपके घर के अंदर जो दुश्मन बैठा है वो ही आपका वो सत्यानाश कर जाए। हाँ, ये थोड़ा सा उलमा का काम है। अपने पास, अपने घर में भी पहले देखें कहीं कोई खतरा तो नहीं है। यहाँ वो आंखें शेर की नजर से देखें, ऐसे बिल्कुल आंखें चार रखें। तो ये काम तो उलमा का है ना, तो ये करेगा तो कौन करेगा? काम तो उलमा ने करना है। और बड़े बड़े यहां मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं कई मकामात के ऊपर कि हमारे उलमा को ये सोशल मीडिया यूज भी नहीं करना आता, नहीं करना आता। सच्ची बात है, नहीं करना आता। वो वाकिफ ही नहीं, कंप्यूटर के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं, वेबसाइट्स को के ऊपर कैसे सर्चिंग करनी है, कैसे इन फितनों को तलाश करना है या उनके जवाब कैसे देने हैं, वो उसका मतलब नहीं तरीका पता। इस वजह से हम मार खा रहे हैं। उलमा इस काम से दूर हैं, उनको चूंकि इस्तेमाल ही नहीं आता। और जो फितने हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डेरे जमा लिए हैं, वो सामने नहीं आते। समझ आई कि नहीं आई? अब सोशल मीडिया पर ही जब फितने हैं तो इसके ऊपर ही उलमा की खेप चाहिए। मेरी बात समझ गए हैं कि नहीं? जी एजाज चौधरी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। तो ऐसी खेप बिठानी पड़ेगी। हाँ, ये अब मैं तो अर्जी कर सकता हूं, हमें तो अब किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। एक बात मैंने नोट की है, और ये मैंने कोई अरसा 10-12 साल से नोट कर रहा हूं। बात कड़वी है, सख्त बात है। सोशल मीडिया पे जो काम करता है उसकी कोई तनख्वाह नहीं है। तो एक मौलाना साहब को, एक लामा साहब को, एक मुफ्ती साहब को कम से कम निज़ाम जिंदगी चलाने के लिए उनको तनख्वाह भी चाहिए। तो चूंकि ये सोशल मीडिया टाइम बहुत ज्यादा मांगता है, बहुत ज्यादा टाइम मांगता है, तो इतना टाइम कौन दे? क्योंकि उसकी कोई पैसे तो मिलने नहीं है। हम अगर एक जगह तकरीर करते हैं, 1 घंटे की तकरीर है, तो माशाल्लाह 25,000 30,000 रुपया आराम से मिल जाता है 1 घंटा बोलने का। ठीक है, अभी बिल फर्ज घंटे से मैं बोल रहा हूं, यहां एक तकरीर कर रहा हूं, कुरान हदीस सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो 1 घंटे की मैंने तकरीर की, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। समझे कि नहीं? तो ये भी है कि मैंने कई जगह गुफ्तगू भी की, उन्होंने मुझे से आगे यही जवाब दिया, शायद ये थुलबना की है। ये भी मामले हैं। हकीकत बात यह है कि इसका पैसा तो मिलना कोई नहीं, तो इसकी तरफ शायद इस वजह से कोई आता कोई नहीं। तो सोशल मीडिया की तरफ आइए,
अल्लाह ने जो लिखा है वो मिलेगा, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। रिज़्क की तो फिक्र ही नहीं, रिज़्क तो पीछे भाग रहा है। जिस आका के लिए, जिस आका के दीन के लिए आप लड़ेंगे, दिन रात लड़ेंगे, इंशाल्लाह वो नजर नहीं करेंगे। बताइए ना, देखे ना, मुझे सरकार मदीने बुला रहे हैं, मुझे सरकार मदीने बुला रहे हैं, क्योंकि मैं सरकार की दीन की खिदमत करता हूँ, दिन रात लड़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो सरकार मुझे मदीने बुला रहे हैं। तो ऐसे होता है फिर। तो कदम बढ़ाइए, उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, कदम बढ़ाइए, सोशल मीडिया पे आइए। यहाँ फितने बहुत ज्यादा है, बहुत फितने हैं। अल्लाह मान वाला हाफिज, इतना फितने, इतने फितने, नित नए फितने। कदम बढ़ाइए, तशरीफ लाइए। मेहराबो मिंबर की अपनी ताकत है, उससे हम बिल्कुल कोई कलाम नहीं करते, लेकिन अब सोशल मीडिया भी तो है ना, एक पूरा महाज है, एक जंग का महाज लगा हुआ है। अब दुश्मन इस जानब से आ रहा है, ये गोश है एक, समझे कि नहीं? तो इस गोशे को भी तो किसी ने संभालना है ना। उलमा इकराम आए और एक्टिव उलमा चाहिए, 24-24 घंटे बैठने वाले, वक्त दें, नजर रखें चारों जानब क्या हो रहा है। इसके लिए उलमा की पूरी खेप चाहिए। ठीक है, ये चंद बातें थी अर्ज की, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।